নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 और माइक्रो इकोनॉमिक्स और ओके कंज्यूमर बिहेवियर भुक्तार आचरण चैप्टारर आमी फाइनल कनक्लूजन দিব বিচাৰিছো আন্ডাৰ অৰ্ডিনাৰি ইউটিলিটি এনালাইসিস মিন্স অনুমান সিদ্ধ উপযোগিতা ধাৰণাৰ অধীনত ভুক্তাজনে ভাৰসাম্যতা কেনেকা লাভ কৰে সেই কনসেপ্ট আমি ডিসকাশন কৰিম আমাৰ ফাইনাল গোল হেতুৱে আছিল যে ভুক্তাজনে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি বা ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন কেনেকা লাভ কৰে আৰু যতে কনজিউমাৰজনে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন লাভ কৰে সেই সিচুৱেশ্যনটোক ভুক্তাৰ ভাৰসাম্যতা और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम বুলি কোৱা হয় আৰু कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम আন্ডাৰ অৰ্ডিনাৰি ইউটিলিটি এনালাইসিসৰ কাৰণে তোমাৰ দুটা বস্তু লাগিব ওয়ান ইজ ইনডিফারেন্স কার্ভ আৰু এটা হৈছে বাজেট লাইন মিন্স নিৰপেক্ষ ৰেখা আৰু বাজেট ৰেখা ওকে সো তেতিয়াহলে বলা আমি স্টার্ট কৰো হাউ কনজিউমার গেটস ইকুইলিব্রিয়াম আন্ডার অর্ডিনারি ইউটিলিটি এনালাইসিস ওকে कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम বা ভুক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ কাৰণে তুমি ভালকে কনসেপ্টটো বুজিব লাগিব বহুত ষ্টুডেন্টে কনসেপ্টটো নাজানেই ভালকে যে ভুক্তাৰ ভাৰসাম্যতা ক'ত হয় তেতিয়াহলে কয় যে ভুক্তাৰ ভাৰসাম্যতা এটো জায়গাত হয় ক'ত যত বাজেট লাইন আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাই স্পৰ্শ কৰে ক্লিয়াৰ মই হিন্দীটো কৈ দিছো मतलब कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम उस जगह पर ही मिलता है जिस जगह पर आईसी एंड बजट लाइन टच करता है क्लियर और उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल पी एक्स बाई पी वाई तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन लेकिन ये सिचुएशन में कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम क्यों मिलता है ओके मतलब एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई होने से कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम क्यों मिलते हैं वो वाला डेप्थ नॉलेज कंज्यूमर्स को पता है लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग को ये चीज़ पता नहीं है क्या ये सिचुएशन में जो एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई होना चाहिए वो सिचुएशन में कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम मिलता क्यों है क्लियर उसके लिए तुमको पी एक्स बाई पी वाई वाला कॉन्सेप्ट और एमआरएस एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा क्लियर मैं कब विचारिছোঁ भुक्ताजने भारसाम्यता ক'ত পায় য'ত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল আৰু বাজেট ৰেখাৰ ঢাল সমান হয় তাৰ মানে প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনাৰ হাৰৰ লগত দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাত সমান হয় কিন্তু কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনাৰ হাৰ আৰু দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাত সমান হলে যে ভুক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে তাৰ আৰৰ কাহিনীটো কি কিয় লাভ কৰে সেই বস্তুটো ষ্টুডেণ্টক খুদিলে নোৱাৰে ক্লিয়াৰ আৰু সেই বস্তুটো অলমোস্ট বহু জায়গাত ক্লিয়াৰো নকৰে ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ সেই বস্তুটো নজনাকৈ থাকি যায় খালি মুখৰ ওপৰত কৈ দিয়ে যত সমান হয় আৰে বাবা সমান হলে ভুক্তাজনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে কিয় হোৱাই ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে এমআৰএস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু যে পি এক্স বাই পি ওয়াই সেই কনসেপ্টটো তুমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যে पी एक्स बाई पी वाई कन्सेप्ट की সেই বস্তুটো বুজি লোৱা ক্লিয়াৰ সো पी एक्स बाई पी वाई হৈছে দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাত पी एक्स মিন্স প্ৰাইস অফ গুড এক্স पी वाई মিন্স প্ৰাইস অফ গুড ওয়াই ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এক্সাম্পল এটা লৈ লওঁ সে ওকে সে এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ ধৰি লোৱা पी एक्स যদি 10 হয় আৰু এটো যদি 2 হয় क्लियर तार माने तो होइसे y और पर यूनिटर प्राइस 2 और x और पर यूनिटर प्राइस 10 क्लियर तेते हले डेफिनेटली ये टू की हबो रेशियो टू की हबो तुम्हार वैल्यू लाबो 5 क्लियर रेशियोर वैल्यू टू 5 बुलोर माने होइसे रेशियो टू बाढिसे क्लियर মই যদি এই বস্তুটো মই ই কৰো এটো যদি মই 2 লিখি দিও ओके एटो যদি 2 লিখি দিও এটো যদি 10 লিখি দিও তেতিয়া হলে তোমার ভ্যালুটো লাভ কিমান 0.2 মিন্স ভ্যালুটো কমিছে ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স মই কব বিচাৰিছো ওপৰত যদি মই 10 লিখো তলত যদি 2 লিখো তেতিয়া হলে মিনিং ওলাই ভ্যালুটো এটো আকৌ এগেইন যদি মই কৰো সাপোজ ধৰা এতিয়া এই ভ্যালুটো মই 2 ললো তলৰটো 10 ললো ইয়াৰ মানেটো হৈছে প্ৰথম মই প্ৰাইস অফ y টু 2 লৈছো প্ৰাইস অফ x টু 10 লৈছো মিন্স x ৰ দামটো বেছিকে লৈছো ৰেশিওৰ ভ্যালুটো বেছি হৈছে এতিয়া মই কি কৰিছো x ৰ প্ৰাইসটো কমকে লৈছো y ৰ প্ৰাইসটো বেছিকে লৈছো হয় না নহয় তেতিয়াহলে ৰেশিওৰ ভ্যালুটো ডেফিনেটলি কি হ'ব কমি যাব ক্লিয়াৰ হল দ্যাট মিন্স হোৱাট মই কব বিচাৰিছো ৰেশিও টু কমিছে ৰেশিও টু কমা মানে ৰেশিওৰ ভ্যালুটো কমিছে দ্যাট মিন্স হোৱাই পি ওয়াই বাঢ়িছে ক্লিয়াৰ আৰু ৰেশিওটো যদি বাঢ়িছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি
px বাঢ়িছে ক্লিয়াৰ হ'ল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন ইফ px by py रेशियो जो बढ़ा बोली कह इफ रेशियो इंक्रीजेस मेरा मतलब ये हुआ px by py का रेशियो बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ x का प्राइस बढ़ गया x का प्राइस बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ गया क्लियर और रेशियो फॉल्स हुआ इसका मतलब ऊपर वाला जो वैल्यू है वो गिर गया और py बढ़ गया मतलब ये रेशियो फॉल्स हुआ इसका मतलब py बढ़ गया और रेशियो इंक्रीज हुआ इसका मतलब px बढ़ गया क्लियर तो ओवरऑल बस्तुটো তুমি এইটো পালা px by py रेशियो बढ़ा माने x प्राइसটো बढ़ा এই বস্তুটো প্রথম ক্লিয়ার কৰি লোৱা তেতিয়া হলে ওভাৰঅল তুমি এই বস্তুটোৰ পৰা এটো পালা কি পালা এই কনসেপ্টটো পালা এটো ভালকে ক্লিয়ার কৰা ওকে মিন্স মই কব বিচাৰিছো px by py ৰেশিওটো बढ़ा মানে ফাইনালি মিনিং পালা px বাঢ়িছে ওকে that means what py কমিছে ক্লিয়াৰ আকৌ যদি তুমি কোৱা px by py ৰেশিওটো কমিছে that means what px কমিছে but at the same time py বাঢ়িছে okay তো ওভারঅল কনসেপ্ট এটো পালা ৰেশিওটো বঢ়া মানে প্রাইস অফ x increases price of y falls ratio decrease means px falls but py increases clear হল এটো হল প্রথম কনসেপ্ট এটা কনসেপ্ট রেশিওর কথাটো কৰো নেক্সট কনসেপ্ট হইছে তোমার নেক্সট কনসেপ্ট হইছে এমআরএস এটো হল বাজেট লাইনৰ স্লোপৰ কথাটো কৈছো নেক্সট হইছে তোমাৰ এমআরএস ওকে এমআরএস xy এমআরএস xy তোর মিনিং টু কি এমআরএস xy এর মিনিং টু হইছে কনজিউমার রেডি টু গেট ওয়ান এডিশনাল ইউনিট অফ x ফর দ্যাট কনজিউমার গিভ আপ y ওকে means the rate at which consumer ready to give up or sacrifice y good for getting one additional unit of x good তার মানে প্রান্তিক প্রতিকল্পনার হার হইছে ভোক্তা এজনে x দ্রব্য এটার অতিরিক্ত একক পোৱাৰ বাবে y দ্রব্যটোৰ কিমানখিনি কমাইছে মিন্স ত্যাগ কৰিছে মিন্স হ্ৰাস কৰিছে ক্লিয়াৰ সো সেই বস্তুটো ক্লিয়াৰ এটা কোৱেশ্চন হল মই যদি বস্তুটো এইটো লিখো ধৰি লোৱা মই যদি এইটো লিখো ইকুয়াল টু px by py ক্লিয়াৰ এই সিচুৱেশ্যনটো হৈছে কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম দিস ইজ দা স্লোপ অফ আইসি দিস ইজ দা স্লোপ অফ বাজেট লাইন এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে ধৰি লোৱা এমআরএস xy গ্রেটার দেন px by py ক্লিয়ার ইয়ার মানেটো হইছে কি জানা ইয়ার মানেটো হইছে ইন দ্যাট সিচুয়েশন কনজিউমার রেডি টু কি গিভ মোর প্রাইস অফ গুড x against one additional unit of x তার মানে কনজিউমার জনে এই সিচুয়েশনটো x 1 ইউনিট পাবৰ বাবে x ৰ প্ৰাইসটো বেছিকে দিব বিচাৰিছে বিকজ হোৱাট ইন দ্যাট সিচুয়েশন কনজিউমাৰৰ কাৰণে x ৰ ভ্যালুটো বহুত বেছি ইভেন দো x ৰ প্ৰাইস হোৱা লেস লিখিছো মানে ভ্যালুটো কমিছে মিন্স x ৰ প্ৰাইস কমিছে তাৰ মানে ইয়াত কনজিউমাৰ ৰেডি টু পে মোর প্রাইস এগেইনস্ট x ক্লিয়ার মিন্স একচুয়াল মার্কেটৰ প্ৰাইস যিমান x তাতকে বেছি দিব বিচাৰিছে ক্লিয়ার কিন্তু যদি মই এটো লিখো এমআরএস xy এটো লিখো ইন দ্যাট সিচুয়েশন মিনিং হ'ব ইন দ্যাট সিচুয়েশন কনজিউমারে ওয়ান এডিশনাল ইউনিট অফ x কাৰণে যিখিনি উইলিং টু পে কৰিব বিচাৰিছে তাতকে মার্কেটত একচুয়াল প্ৰাইসটো বেছি ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স এই সিচুয়েশনটোত কনজিউমার উইলিং টু পে মোর এগেইনস্ট x ইন দ্যাট সিচুয়েশন কনজিউমার উইলিং টু পে লেস এগেইনস্ট x whatever the actual price clear তার মানে এই রেশিওটো কম এইফালে বেশি আছে তার মানে কনজিউমারে x ৰ কাৰণে বেশি পে কৰিব বিচাৰিছে যিমান একচুয়াল প্ৰাইস x ইয়াত কনজিউমারে x ৰ কাৰণে পে কৰিব বিচাৰিছে কম বাট মার্কেটত একচুয়াল প্ৰাইস x বেশি ক্লিয়ার কিন্তু যদি ইকুয়াল তুমি লিখা তার মানেটো হ'ব কনজিউমারে 1 ইউনিট x ৰ কাৰণে যেটো প্ৰাইস দিব বিচাৰিছে মিন্স উইলিং টু পে ইজ ইকুয়াল টু দা একচুয়াল প্ৰাইস অফ x ক্লিয়ার হেকাৰণে সে কনজিউমার গেটস ইকুইলিব্রিয়াম व्हेन एमआरएस xy इज इक्वल टू px by py मैं बोलना चाहता हूँ अगर ये सिचुएशन हुआ ना इसका मतलब ये हुआ कंज्यूमर ने वन एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए जितना प्राइस रेडी टू पे है ना वही मार्केट का एक्चुअल प्राइस है x का क्लियर मतलब कंज्यूमर जितना प्राइस देना चाहता था x के लिए मार्केट में उसका प्राइस उतना ही है क्लियर मान लो कंज्यूमर x के लिए देना चाहता था 10 मार्केट में एक्चुअल प्राइस भी 10 बट हियर
कंज्यूमर विलिंग टू पे मान लो 12 बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस कितना 10। इधर क्या हुआ कंज्यूमर विलिंग टू पे 8 बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस 10। मतलब कंज्यूमर देना चाहता था x के लिए 10, मार्केट में भी एक्चुअल प्राइस 10। क्लियर। इधर क्या हुआ कंज्यूमर देना चाहता है 12 लेकिन मार्केट में एक्चुअल प्राइस 10। क्लियर। इधर क्या हुआ कंज्यूमर विलिंग टू पे 8 बट मार्केट में एक्चुअल प्राइस कितना 10। मतलब इन दैट सिचुएशन एक्चुअल प्राइस इज मोर, इन दैट सिचुएशन एक्चुअल प्राइस इज लेस, इन दैट सिचुएशन एक्चुअल प्राइस एंड विलिंग टू पे आर इक्वल। क्लियर। ये शायद इसलिए कंज्यूमर ये सिचुएशन से दूसरा कोई सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं। बिकॉज वाई ओनली इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर वॉट एवर विलिंग टू पे अगेंस्ट एक्स दैट अमाउंट इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्स। मतलब कंज्यूमर एक्स के लिए जितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है मार्केट में उसका प्राइस उतना ही है। मतलब एक्स गुड का प्राइस मान लो 8, कंज्यूमर भी देना चाहता है 8। क्लियर। तो ये सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्लियर। तो ये वाला सिचुएशन में अगर देखो तो डायग्रामेटिकली कंसेप्ट में ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ अगर हो गया तो फाइनली कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन में फाइनली कंज्यूमर गेट्स व्हाट इक्विलिब्रियम। ओके। ये सिचुएशन में कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम। ओके। इधर मैंने लिख लिया गुड, ओके, गुड एक्स। क्लियर। इधर हो गया गुड एक्स, इधर हो गया गुड 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 वाई। क्लियर हो गया। सो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट गुड वाई, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट गुड एक्स। क्लियर। अभी तुमको दो चीज चाहिए, वन इज बजेट लाइन, अनादर इज इंडिफरेंस ग्राफ। तो मैंने तुम्हार बजेट रेखा और निरपेक्ष रेखा লাগিব। तो मैं बजेट लाइन एडाल ड्र कर लैसो। दिस इज आवर बजेट लाइन, दिस इज आवर बजेट लाइन PL। ओके। So this is our budget line PL budget line. Okay. In that situation, this is one IC. Means here we draw IC map. Okay. IC map. This is IC1. This is IC. This is IC2. Clear? Next, this is IC3. Okay. This is IC3. Okay. Means this PL budget line represents consumer effort to purchase any combination within the triangle of the budget line. Means PL budget line के अंदर कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। मतलब ये पॉइंट भी खरीद सकता है, 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 इधर भी खरीद सकता है। बिकॉज दिस एरिया रिप्रेजेंट कंज्यूमर एफोर्ड टू बाय अंडर बजट सेट। क्लियर। बट कंज्यूमर को IC3 मिलेगा नहीं, बिकॉज IC3 मिलने के लिए बजट ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर। मतलब कंज्यूमर्स का बजट डज नॉट परमिट टू कंज्यूमर टू टच IC3। क्लियर। तार माने निरपेक्ष रेखा IC3 डालक कंज्यूमारे स्पर्श करिब नोवारे, किय तेर बजेट PL लाइन डाले अनुमति प्रदान नकरे। क्लियर। तेतियाह'ले कंज्यूमारर हातत थका पॉइंट जदि तुमि चोवा ऑन द बजेट लाइन, तेतियाह'ले कंज्यूमारे एटु एटा पॉइंट पाइ आछे, एटु एटा पॉइंट पाइ आछे, एटु एटा पॉइंट पाइ आछे। क्लियर। এই पॉइंटक मैं नाम दी दिलो G, এই पॉइंटक नाम दी दिलो सपोज K। क्लियर। तो क्वेश्चन होइसे G पॉइंटत कंज्यूमर परचेज करिब पारे, K पॉइंटतो पारे, এই पॉइंटतो पारे। क्लियर। तेतियाह'ले क्वेश्चन हल पॉइंट G मैं बुझाई दिसो, पॉइंट Gत की হয় हेतु लिखिम, पॉइंट 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 केत की হয় हेतु लिखिम, फाइनली पॉइंट पॉइंट इट की হয় हेतु लिखिम। क्लियर। तीनटा पॉइंट। तो क्वेश्चन हल G पॉइंटत कन्सेप्ट की হয় জানানে? आमी जानो स्लोप माने होइसे कार्व एडालर पॉइंटर चेंज। ओके। मतलब एनी
कर्व का जो पॉइंट का चेंज होता है ना, पॉइंट का चेंज, दिस इज नथिंग बट स्लोप। हर कर्व का ही स्लोप होता है, लेकिन किसी किसी कर्व का स्लोप का एक तो नाम होता है। आईसी कर्व का स्लोप का नाम हो गया MRS/XY, बजट लाइन का स्लोप का नाम हो गया PX/PY, मतलब प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। क्लियर। अभी क्वेश्चन है, इस पॉइंट में देखो बजट लाइन भी है, आईसी भी है, मतलब इस पॉइंट तुम अफोर्ड कर सकते हो, मतलब परचेस कर सकते हो, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द बजट लाइन। और इस पॉइंट में अगर तुम कॉम्बिनेशन एक तो खरीदोगे ना, तो तुमको IC1 सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस पॉइंट भी बजट लाइन में है, तो तुम ये कॉम्बिनेशन भी परचेज कर सकते हो और सेटिस्फैक्शन तुमको IC1 मिलेगा। बजट लाइन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन व्हाट एवर यू परचेज, मीन्स एबल टू परचेज, बट IC रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेटिस्फैक्शन। क्लियर। अभी क्वेश्चन है, इस पॉइंट में कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्लियर। इस पॉइंट में भी कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है पता, जी पॉइंट में देखो, ये जो IC का स्लोप है ना वो ज़्यादा है, लेकिन बजट लाइन का स्लोप कम है। मतलब इन दैट पॉइंट स्लोप ऑफ IC इज मोर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब इस पॉइंट में IC का स्लोप स्टीप है, मतलब ज़्यादा है, और बजट लाइन का स्लोप फ्लैट है। इसका मतलब ये हुआ IC का स्लोप का नाम हो गया MRS/XY, और बजट लाइन का स्लोप का नाम हो गया PX/PY। क्लियर। इस पॉइंट में देखो IC का स्लोप थोड़ा फ्लैट हो गया, बजट लाइन का स्लोप स्टीप है, ये फ्लैट ये स्टीप, ये फ्लैट ये स्टीप। इसका मतलब ये हो गया के पॉइंट में IC का जो स्लोप है ना MRS/XY वो कम है, फ्लैट मतलब कम है, लेकिन प्राइस का रेशियो का स्लोप ज़्यादा है। क्लियर। लेकिन इस पॉइंट में IC का स्लोप ज़्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है, मतलब ये ज़्यादा है। सॉरी, अभी क्या हुआ देखो, हियर स्लोप ऑफ IC इज मोर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। In that point, slope of IC is less than slope of budget line. Clear? मतलब इधर IC का स्लोप फ्लैट है, मतलब कम है, और इसका स्टीप है, मतलब ज़्यादा है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन रेशियो को लिखा, प्राइस रेशियो को। इधर तुम्हारा IC का स्लोप ज़्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है। क्लियर। मैं कब विचारिছোঁ এই পইণ্টত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢালটো বেছি, বাজেট ৰেখাৰ ঢালটো কম। ক্লিয়াৰ। এই পইণ্টত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল কম, বাজেট লাইনৰ ঢাল বেছি। ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এই পইণ্টত দুইটাৰ স্লোপ ইকুৱেল হ'ব, সেইটো আমি লাষ্টত কৰিম। ক্লিয়াৰ। अभी बात ये हुआ, अगर मान लो ये वाला सिचुएशन आया, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट में कंज्यूमर को X1 एडिशनल यूनिट मिलने के लिए वो रेडी रहेगा ज़्यादा प्राइस देने के लिए। मतलब 1 यूनिट X उसको मिलने के लिए वो रेडी रहेगा ज़्यादा प्राइस देने के लिए, लेकिन मार्केट में X का प्राइस कम ही है। मतलब इसका मीनिंग ये आया, इसका मीनिंग ये आया कंज्यूमर्स ready to pay more price for good X। मैं शॉर्ट करके लिख दिया, लास्ट में मैं अच्छा से लिख दूंगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर्स ready to pay less अगेंस्ट व्हाट, गुड X। मतलब ये वाला पॉइंट में कंज्यूमर X का पर यूनिट का प्राइस देने के लिए जितना रेडी रहेगा, मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस कम होगा। मतलब कंज्यूमर विलिंग टू पे मोर अगेंस्ट एक्चुअल प्राइस, बट इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस अगेंस्ट द एक्चुअल प्राइस। क्लियर। लेकिन ये वाला सिचुएशन में क्या होगा पता है, कंज्यूमर रेडी टू पे जितना होगा ना, मतलब कंज्यूमर विलिंग टू पे जितना होगा X का प्राइस देने के लिए, मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस उतना ही होगा। मैं कब विचारिছোঁ भोक्ताजने X দ্ৰব্যটোৰ এক একক অতিৰিক্ত গুড পোৱাৰ বাবে যিটো দৰ দিব বিচাৰিছে, সেই দৰটো দিব বিচাৰিছে, কৈছোঁ দিব বিচাৰিছে, সেই দৰটোৱে একচুৱেলি মাৰ্কেটত প্ৰকৃত দৰকাৰ
এক্স দ্ৰব্যৰ তাৰমানে যিমান তেওঁ দিব বিচাৰিছে সিমানে বজাৰত প্ৰাইচ ক্লিয়াৰ मतलब MRS XY इज इक्वल टू PX बाय PY क्लियर सो ये वाला सिचुएशन में इसलिए शायद कंज्यूमर्स इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मूव नहीं करना चाहेगा क्लियर मतलब इस पॉइंट में कंज्यूमर ये सोचेगा मुझे एक्स मिलने के लिए जितना मैं रेडी हूँ देने के लिए एक्स का प्राइस उतना ही मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस मतलब कंज्यूमर मान लो एक्स का पर यूनिट का प्राइस देना चाह रहा है 6 रुपीस मार्केट में एक्स का प्राइस भी 6 रुपीस ही है क्लियर इसका मतलब ये हुआ कंज्यूमर फाइनली गेट इन दैट सिचुएशन इक्विलिब्रियम बाय परचेजिंग OM अमाउंट ऑफ गुड एक्स ON अमाउंट ऑफ गुड वाई मतलब ये सिचुएशन में कंज्यूमर ON अमाउंट ऑफ गुड वाई OX अमाउंट ऑफ गुड एक्स कॉम्बिनेशन परचेस करेगा बिकॉज अगेंस्ट दैट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर फाइनली गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम बिकॉज हुआ है इन दैट पॉइंट ओनली हियर मतलब पॉइंट ई जहाँ पर स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन और उसका जो डेप्थ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है मतलब कंज्यूमर विलिंग टू पे प्राइस फॉर गुड एक्स वट एवर दैट प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट मतलब एक्स का प्राइस एक्चुअली मार्केट में जितना है कंज्यूमर भी उतना पे करने के लिए रेडी है लेकिन ये पॉइंट में कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस गुड एक्स के लिए लेकिन मार्केट में एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है क्लियर अभी ये जो बजट लाइन का स्लोप है ना ये स्लोप देखो ज़्यादा है इधर स्लोप कम है क्लियर इस पॉइंट में दोनों का IC और बजट लाइन का स्लोप इक्वल है क्लियर मतलब इस पॉइंट में फाइनली कंज्यूमर रेडी टू पे प्राइस इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस क्लियर सो फाइनली ये सिचुएशन में क्या होगा कंज्यूमर फाइनली गेट इक्विलिब्रियम वेयर स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन मतलब MRS XY इज इक्वल टू PX बाय PY क्लियर अभी ये वाला सिचुएशन को अगर मैं ओमिट करके ये वाला चीज़ फिर दिखा रहा हूँ GENK था ना GEK पॉइंट अगर देखो ये तीनों पॉइंट में ये चीज़ तुमको मिल रहा है क्लियर तीनों चीज़ अगर ओवरऑल एक्सप्लेन करो मतलब मैं नंबर 1 दे के बोलता हूँ हाँ पॉइंट G मिला नंबर 2 पॉइंट तुमको E मिला नंबर 3 पॉइंट तुमको K मिला क्लियर अभी ये तीनों पॉइंट जब मिला ना ये तीनों पॉइंट में ये कॉन्सेप्ट आया मतलब G पॉइंट में MRS XY ग्रेटर देन PX बाय PY मिला ये सिचुएशन में MRS XY इज इक्वल टू PX बाय PY मिला ये सिचुएशन में तुमको मिला MRS XY लेस देन PX बाय PY क्लियर अभी सवाल ये है ये वाला सिचुएशन में जब G पॉइंट था तब MRS XY स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन मीन्स इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर्स मैं लिख के दे रहा हूँ कंज्यूमर्स willing to pay more price against per unit good X consumers willing to pay more price per unit of good X whatever
whatever the actual price। ये सिचुएशन में consumers willing to pay less price per unit of good X whatever the actual प्राइस। क्लियर? बट ये सिचुएशन में विलिंग टू पे इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। किसका? गुड एक्स का। क्लियर हुआ? अभी मैंने तीनों चीज़ लिख दिया। मैं तीनटा पॉइंट दी दिसो चुआ। पॉइंट जी2 आमार ऊपरत आसिले जो स्लोप ऑफ आईसी इज मोर देन स्लोप ऑफ बजेट लाइन। इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर विलिंग टू पे मोर प्राइस पर यूनिट गुड एक्स व्हाट एवर द एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब ये हुआ एक्स का एक्चुअल प्राइस मार्केट में जितना है ना उससे ज़्यादा कंज्यूमर रेडी है पे करने के लिए। क्लियर? मतलब कंज्यूमर एग्रेसिव ज़्यादा है एक्स को पाने के लिए और एक्स पाने के लिए वो रेडी है ज़्यादा पे करने के लिए, लेकिन मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस कम ही है। क्लियर? ये सिचुएशन में कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस मतलब कंज्यूमर एडिशनल एक्स यूनिट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है। क्लियर? लेकिन मार्केट में एक्स का प्राइस एक्चुअली ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल प्राइस प्रिवेल कर रहा है ज़्यादा, लेकिन कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस। क्लियर? लेकिन जब एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई हुआ, मतलब स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजेट लाइन हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैंने शॉर्ट करके लिख दिया अभी विलिंग टू पे मतलब कंज्यूमर एक्स एडिशनल यूनिट के लिए जितना पे करने के लिए रेडी है ना उतना ही मार्केट में एक्स का पर यूनिट का प्राइस है। मतलब कंज्यूमर जितना देना चाहता था उतना ही प्राइस है मार्केट में पर यूनिट एक्स का। क्लियर? इसलिए शायद कंज्यूमर ये सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन में जाना नहीं चाहता है। मैं कब विचारिছোঁ এই জায়গাটোত নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢালটো ডাঙৰ বাজেট ৰেখাৰ ঢালটো কম আৰু তাত কি হয় ভোক্তাজনে এক্সৰ অতিৰিক্ত একক গুডটো পাবৰ বাবে বেছিকে দৰ দিব বিচাৰিছে, কিন্তু মাৰ্কেটত এক্সৰ প্ৰাইচটো এনেও কম। প্ৰাইচটো একচুৱেলি কম কিন্তু দিব বিচাৰিছে বেছি। ক্লিয়াৰ? এই সিচুৱেশ্যনটোত কনজিউমাৰজনে দিব বিচাৰিছে এক্সৰ পাৰ ইউনিটৰ প্ৰাইচটো কম কিন্তু মাৰ্কেটত একচুৱেল প্ৰাইচটো প্ৰবেবলি বেছি। ক্লিয়াৰ? বাট এই সিচুৱেশ্যনটোত কনজিউমাৰ জনে ভোক্তাজনে যিমান দিব বিচাৰিছে এক্সৰ অতিৰিক্ত গোটৰ বাবে দৰ বজাৰত এক্সৰ অতিৰিক্ত বা এক্সৰ প্ৰতিটো গোটৰ দৰ সিমানে। ক্লিয়াৰ? তাৰ মানে এই সিচুৱেশ্যনটোত যদি চোৱা কনজিউমাৰে ধৰা দিব বিচাৰিছে 10 কিন্তু মাৰ্কেটত একচুৱেল প্ৰাইচ ধৰি লোৱা 8। ক্লিয়াৰ? এই সিচুৱেশ্যনটোত কনজিউমাৰে দিব বিচাৰিছে 12 মাৰ্কেটত একচুৱেল প্ৰাইচো কিমান 12। ক্লিয়াৰ? এই সিচুৱেশ্যনটোত কনজিউমাৰে দিব বিচাৰিছে 8 কিন্তু মাৰ্কেটত একচুৱেল প্ৰাইচ বস্তুটোৰ ধৰি লোৱা 12। ক্লিয়াৰ? তাৰমানে কনজিউমাৰে দিব বিচাৰিছে 10 একচুৱেল প্ৰাইচ এক্সৰ 8। ইয়াত কনজিউমাৰে দিব বিচাৰিছে 12 টকা পাৰ ইউনিটৰ একচুৱেল প্ৰাইচো 12। ক্লিয়াৰ? বাট ইয়াত কনজিউমাৰে দিব বিচাৰিছে কম কিন্তু মাৰ্কেটত একচুৱেল প্ৰাইচ কিমান 12। ইয়াত 10 দিব বিচাৰিছে একচুৱেল প্ৰাইচ 8, ইয়াত 12 দিব বিচাৰিছে একচুৱেল প্ৰাইচ 12, ইয়াত দিব বিচাৰিছে 8 বাট একচুৱেল প্ৰাইচ 12। ক্লিয়াৰ? সো সেইকাৰণে চাগে কনজিউমাৰে এই সিচুৱেশ্যনটোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়। मतलब consumers have no tendency to move from this particular point means against equilibrium point। clear? मतलब जहाँ पर MRS XY is equal to PX by PY हुआ, मतलब this point E is finally said to be equilibrium condition of the consumer। clear? मतलब consumers का equilibrium situation में consumers को एक कंडीशन मिलता है, दैट कंडीशन इज व्हाट MRS XY इज इक्वल टू PX बाय
पी वाई। क्लियर? मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अगर देखो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, ये होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन भी बोलता है। क्लियर? और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को नेसेसरी भी बोलता है। क्लियर? नेसेसरी मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज सफिशिएंट। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है? एट द point of equilibrium, IC convex to the origin। क्लियर? मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गए एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, मतलब स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हो गया एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जिस जगह पर इक्विलिब्रियम तुमको मिला, जहां आई सी एंड बजट लाइन को टेंजेंट किया था, टच किया था, उस पॉइंट के एगेंस्ट में। क्लियर? आईसी का मतलब निरपेक्ष रेखाडाल सदाय केंद्रर प्रति कि हब लागिब, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, उत्तल हब लागिब। ओके, तो फाइनली कंज्यूमर्स अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और आईसी कर्व अप्रोच और इन डिफरेंस कर्व्स अप्रोच, कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम through budget line and IC where two conditions to be fulfilled. Okay, these two condition is what? One condition first order is necessary, that condition is what? Slope of IC is equal to slope of budget line, मतलब MRS XY is equal to PX by PY. Okay, this is necessary but not sufficient, but sufficient condition is second order condition, and second order condition is what? At the point of equilibrium where IC definitely convex to the origin, मतलब IC को convex होना पड़ेगा। This is the second order condition. Okay, तो आज हम लोग ने consumers equilibrium concept under ordinal utility analysis कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा टॉपिक लेके आगे जाना है। मैं कय विषय आज आमार अनुमान सिद्ध उपयोगितार धारणार अधीनत बा निरपेक्ष रेखार विश्लेषणत आमी भोक्ताजने भारसाम्यता केनेका लाभ करे সেই বস্তুটো डिस्कशन কৰিছোঁ निरपेक्ष रेखा और बाजेट रेखार द्वारा। क्लियर? और निरपेक्ष और बाजेट रेखार द्वारा भोक्ताजने भारसाम्यता ताते पाय जो प्रथम शर्तটো হৈছে प्रांतिक प्रतिकल्पनार हार और द्रव्य दुटार दৰৰ अनुपात समान हो, मीन्स एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। द्वितीय शर्तটো হৈছে সেই ভাৰসাম্য বিন্দুটোত নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল সদায় কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি কি হ'ব লাগিব, উত্তল হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল? নেক্সট ক্লাছত ডেফিনেটলি আমি বেলেগ এটা টপিক লৈ পেলাই আগবাঢ়িম। ওকে, তেতিয়াহ'লে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।